Hello, dear children. Good morning. Welcome back to your English class. Children, today we are going to study Unit 2nd poem The Wind from class 9th English NCERT reader book Beehive. Children, let me tell you that this poem The Wind was originally written and composed in Tamil language by Subramanya Bharati, and then it was translated into English by A.K. Ramanujan. Okay, A.K. Ramanujan was a Kannada and an English poet, and he used to translate the classical and the modern poetry. Okay, now as the name suggests that this poem talks about the wind. Wind means hawa, और इसमें actually the poet is comparing the wind with the difficulties and the challenges of our life and the kind of circumstances that we have to face in our life, which testify our weaknesses, our strength and our power. So here the wind is a kind of symbolic representation of the difficulties and the challenges of our life. Okay, children, before we go into the reading of the poem, let's talk about the poet, that is Subramanya Bharati, and his full name was Chinnaswamy Subramanya Bharati, also known as Bharatiyar, was a Tamil writer, poet, journalist and Indian independence activist and a social reformer. तो सुब्रमण्य भारती, जिन्होंने ओरिजिनली तमिल में ये पोएट्री लिखी थी, he was famous with the name as Bharatiyar. And he was not only a poet but a journalist and an independence activist also. उन्होंने इंडिपेंडेंस वॉर में और सारे स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट किया और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती, और ये महाकवि भारती के नाम से जाने जाते हैं. ही वॉज ए पायनियर of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. So, because of his contribution in the Tamil poetry, Tamil literature, he is considered as the pioneer of modern Tamil poetry, and he was considered as one of the greatest Tamil literary figure of all time. तो जितने भी इन्होंने वर्क किए हैं और तमिल लिटरेचर में इनका बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ हिज टाइम. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. In the poem, the poet teaches us how we should stand against our oppressors. In the poem, he presents the wind god who destroys everything weak. So, as I told you in the beginning, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इस पोएम में पोएट ने विंड को हमारी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस से कंपेयर किया है. और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं और चीज़ें टूट जाती हैं, और जितनी भी वीक चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं. इसी तरह से पोएट का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जितनी भी वीक चीज़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं वो बच जाती हैं. तो उसी सेंस में जब हमारे लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमें ये जानने में हेल्प होता है दैट वेदर वी आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु गिव अप इन फ्रंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, और वेदर वी आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु आर स्ट्रॉन्गर एंड कैन फेस द चैलेंजेस इन द लाइफ. तो इस तरह से पोएट ने ये बताया है कि हमें जितनी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं, उससे हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है कि हम किस तरह के पर्सन हैं, whether we are stronger or we are weaker. He wonders why the mighty God is fond of poking fun only with the weak. Poking fun means making fun. So as I told you that the poet here is describing the wind as God, और विंड को गॉड की तरह रिप्रेजेंट करते हुए पोएट का कहना है कि वो ये सोचते हैं कि विंड गॉड को जो वीक चीज़ें हैं उनका मजाक बनाने में क्यों अच्छा लगता है. Here these lines are a kind of satirical comment over the weak people.
यहाँ पे वीक चीज़ों से मतलब है वीक लोग जो लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ के आने के वजह से या प्रॉब्लम्स के वजह से हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हीं के बारे में है कि कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें मिल जाती हैं या चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है लाइफ में, तो हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ गॉड हमें ही क्यों आज़मा रहे हैं या सिर्फ हमें ही क्यों टेस्ट कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ कितनी अच्छी है, जबकि ये ट्रू नहीं है। हर एक की लाइफ में कभी ना कभी वर्स्ट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वर्स्ट सिचुएशंस आती हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसा ही आपने जस्ट अभी एक चैप्टर पढ़ा है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसमें एवेलिन के बारे में आपने पढ़ा और आपने देखा कि उनकी एक जो मेजर प्रॉब्लम थी उनके साथ, उनकी डिसेबिलिटी थी कि वो सुन नहीं सकती थी। 11 साल की उम्र में ही उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी हियरिंग की, एंड शी वॉज अ कंप्लीट डेफ, और उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता था। और उनका एम्बिशन क्या था, उनका सपना ये था कि वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बनना चाहती थी। सो क्या ये पॉसिबल था, क्या ये ईजी था? दैट वॉज नॉट एट ऑल ईजी टास्क, एंड इट वॉज़ नॉट एट ऑल एन ईजी वॉक ऑल्सो। केक वॉक नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ थी उनकी और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना था उन्हें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, बल्कि अपनी इस डिसएबिलिटी को ही अपनी एक स्ट्रेंथ बना ली और फिर वो सक्सेसफुल बन पाई। आज हम उनके बारे में स्टोरीज़ पढ़ते हैं, इंस्पिरेशंस लेते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टीज़ पर ओवरकम किया, उस पर जीत हासिल की और फिर उन्हें सक्सेस मिल पाया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो ये सही नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर पोइट ने ये कहा है कि वो सोचते हैं कि क्यों विंड गॉड, यानी कि जो हवाएं चलती हैं उसमें जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, यानी कि जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो जो वीक पीपल होते हैं वो पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ना कि वीक। ओके, फर्दर द पोएट देयरफॉर एडवाइजेस द वीक टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। आगे पोएम में पोएट वीक लोगों से ये एडवाइस करते हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस तरह की जब डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में आती हैं। ही सजेस्ट देम टू बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली, और हेयर वी शुड कीप इन माइंड दैट द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द मेंटली पावर एंड स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकली। हमें फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअली द विंड इज़ द सिंबल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टिकल्स दैट ह्यूमंस हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ये जो एक्चुअल में जिस विंड, जिस हवा की बात की जा रही है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उन डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टिकल्स के बारे में है जो हम ह्यूमंस अपनी लाइफ में फेस करते हैं, सर्वाइव करते हैं लाइफ में और स्ट्रगल करते हैं उसके साथ। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग ऑफ द पोएम। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought rain again. Now here the poet is telling द विंड। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो विंड को एड्रेस करते हुए उससे बात करते हुए वो कहते हैं कि विंड तुम थोड़ी सॉफ्टली आओ, मीन्स थोड़ा आराम से आओ और सडन नहीं आओ। क्योंकि क्या होता है जब हवा चलती है तो वो सडन ही आती है, वो ऐसा नहीं होता है कि आपको पता होता है या कि हवा चलने वाली है, तेज़ हवाएं आने वाली हैं, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस आते हैं, वो भी अचानक से ही आते हैं। सडनली हमारे साथ कुछ ऐसा बैड इंसिडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई आइडिया नहीं होता है। तो यहाँ पे भी पोएट का यही कहना है कि वो जिस तरह से विंड से कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सॉफ्टली आओ, स्लोली आओ, धीमे से आओ, उसी तरह से हम लाइफ में भी जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो भी बहुत ही सडनली आ जाती हैं, अचानक से आ जाती हैं। और इसीलिए पोएट का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आए
वो स्लोली आए, धीमे से आए, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। आगे वो ये कहते हैं विंड से कि हवा जब तुम आती हो, तेज़ आती हो, तुम थोड़ा तो पहले स्लोली आओ, धीमे आओ, सॉफ्टली आओ। और वो ये भी उससे कहते हैं कि विंडोज़ यानी कि खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो, और पेपर्स जितने हैं उनको मत स्कैटर करो। जैसे कि यू मस्ट हैव सीन इन रियल लाइफ ऑल्सो कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, विंडोज़ जो होती हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, उनके शटर्स जो हैं वो टूट जाते हैं, शीशे ग्लासेस जो हैं वो टूट जाते हैं। और जब कहीं पे शेल्फ पे बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं तो क्या होता है, हवा की झोंकों के साथ वो सारे पेपर्स ज़मीन में कहीं स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं पूरी तरीके से। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जितनी भी शेल्फ पे बुक्स रखी होती हैं, किताबें रखी होती हैं, वो एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। वो हवा से ये रिक्वेस्ट तो करते हैं कि तुम स्लोली आओ और शीशे के जो शटर्स हैं, जो विंडोज़ के जो शटर्स हैं उनको तोड़ो नहीं, और जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर नहीं करो, बिखरो नहीं, और शेल्फ पे जितनी बुक्स रखी हैं उनको नीचे नहीं गिराओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि इन तेज़ हवाओं से ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं अल्टीमेटली। और इस वजह से वो पोएट हवा से कहते हैं कि देखो तुमने कितना डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने बुक्स के जो पेजेस हैं उनको टोर इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेयर। टेयर मीन्स फाड़ना। तो सारी किताबों के जो पेजेस हैं वो तुमने फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर दोबारा से अपने साथ बारिश लेकर आ गए हो। यहाँ पे हवा को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हुए पोइट ने हमारी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमारी लाइफ में भी जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो अचानक से आती हैं, और सडनली वो आकर के बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाती हैं, बर्बादियाँ ले आती हैं। और जब ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो वो बहुत ही तेज़ होती हैं, और पलक झपकते ही इन द विंक ऑफ एन आई सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और जिस तरह से उन्होंने ये बात बताई कि जो बुक्स होते हैं उनके पेजेस जो हैं वो फट जाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारी लाइफ में भी बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारी जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, तो हम बहुत चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, हमें बहुत चीज़ों का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पोइट ने विंड को एड्रेस करते हुए ये सारी बातें कही हैं जो कि एक्चुअल में हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को प्रेजेंट करती हैं। Now let's go further. He further says, you are very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Now here again the poet is addressing to the wind as God. यहाँ पे भी poet ने wind को एक God की तरह रिप्रेजेंट करते हुए ये कहा है कि तुम हवा जो तुम हो वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, चालाक हो, स्मार्ट हो, और तुम्हें वीक चीज़ों का मजाक बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फ्रेल हेयर मीन्स नाजुक, डेलिकेट। तो जो भी चीज़ें जो वीक हैं, नाजुक हैं, डेलिकेट होती हैं, जैसे कि जो हाउसेस हैं जिनके बेस स्ट्रांग नहीं होते हैं, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, वो गिर करके टूट जाती हैं, और ये गिर करके जो टूटना होता है इसे ही हम क्रम्बलिंग बोलते हैं। तो बहुत सारी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो कुछ ऐसे डोर्स भी होते हैं जो मज़बूत नहीं होते हैं और उनमें ज़्यादा पार नहीं होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं, तो वो भी टूट जाते हैं। और जो भी राफ्टर्स होते हैं, राफ्टर्स यू मस्ट हैव सीन दिस स्लैंटिंग स्लोप्स विद द हाउसेस, जो घरों में ऊपर की तरफ सपोर्ट में जो भी राफ्टर्स बनाए जाते हैं वो अगर वीक है और अच्छे उनका बेस नहीं है तो वो भी इन तेज़ हवाओं के चपेट में आकर के टूट जाते हैं, चाहे वो लकड़ी हो या फिर बॉडीज़ हो। बॉडीज़ मीन्स कुछ भी, लाइक जितनी भी
पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन सब में जो भी कमज़ोर हैं, जो भी फ्रेल है, जो भी वीक टाइप के बॉडीज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, टूट गिर करके टूट जाते हैं, चाहे वो लाइव्स हों यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो हो, या फिर लोगों के दिल हो। एक्चुअल में यहाँ पे पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया है कि जब वो हमारी लाइफ में आती हैं, परेशानियां जब आती हैं, तो जो भी फ्रेल टाइप के पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ही डेलिकेट टाइप के नेचर के लोग होते हैं, वो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। और फिर अगर उनका बेस यानी कि अगर उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है चीज़ों को फेस करने का और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने का, अगर उन्हें तरीका नहीं पता है, उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और चाहे वो उनकी ज़िंदगियां हो, चाहे उनके दिल हो, वो सब ही एक एक करके टूट जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर उसने पोएट ने फ्रेल बताई हैं, जैसे कि चाहे वो घर हो, डोर हो, या राफ्टर्स हो, या फिर वुड हो, बॉडीज़ हो, लाइव्स हो, यहाँ तक कि हार्ट्स भी अगर वीक हैं तो वो इन तेज़ हवाओं के चलने से टूट जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं। उसी तरह से डिफ़िकल्टीज़ भी वीक लोगों को तोड़ देती है, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। विनोज मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द व्हीट ग्रेन फ्रॉम इट्स chaff। आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं को अगर झटकते हैं और उसमें हवा से फूंक करके उसके शाफ को उससे अलग करते हैं, तो क्या होता है, जो प्योर जो वीट होता है वो छट करके अलग हो जाता है, ऊपर की तरफ रह जाता है, और जितनी भी उसमें वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम शाफ कहते हैं, वो नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाता है। तो इसी तरह से पोएट का कहना है कि जब हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं या कोई भी चैलेंज आता है, तो गॉड क्या करते हैं, वो फ़िल्टर करते हैं एक तरीके से, उसमें जो भी वीक लोग हैं उनको छट करके वो अलग हो जाते हैं और नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं, और जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो बिल्कुल उसी ग्रेन की तरह से, जो प्योर व्यूट होता है, झटकने पर जब वो बाकी रह जाता है, उसी तरह से जितने भी स्ट्रांग पर्सनालिटी के लोग हैं वो बाकी रह जाते हैं, और जो वीक होते हैं वो नीचे उन शैफ की तरह गिर जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जब भी कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने का या फिर एक वीक पर्सनालिटी होने के बीच में फ़र्क पता चल जाता है कि हम एक्चुअल में क्या है। और गॉड भी इसी तरह से जो लाइफ में हमारे चैलेंज भेजते हैं, तो वो इसी वास्ते भेजते हैं कि वो फ़िल्टर कर सकें कि जो लोग वीक हैं और जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उनके बीच में। ओके, नाउ ही सेज, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, let's join the doors firmly. Firmly means strongly. Practice to form the body, make the heart steadfast. यहाँ पे दोबारा से अब पोएट का कहना है कि जिस तरह से जब तेज़ हवा चलती है और उसमें जब तेज़ हवाएं चलती हैं और उस समय मौजूद जितनी भी फ्रेल चीज़ें होती हैं, जो डेलिकेट होती हैं और वीक होती हैं, वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, और फिर उस वक्त जो मज़बूत चीज़ें रह जाती हैं वो अलग हो जाती हैं। जिस तरह से ग्रेन को अगर फूका जाए, उसको झटका जाए, तो जो प्योर व्हीट ग्रेन होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है और उसका जो शैफ होता है वो नीचे की तरफ रह जाता है। तो डिफ़िकल्टीज़ जब लाइफ में आती हैं तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ अलग हो जाती हैं और जितने भी वीक लोग होते हैं वो उन शैफ की तरह गिर कर के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए पोएट का कहना है कि हमें भी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, और जब तेज़ हवाएं चलें तो हमें अपने घरों को, क्योंकि हम हवाओं को तो नहीं रोक सकते हैं और इसी तरह से हम डिफ़िकल्टीज़ को भी नहीं रोक सकते हैं अपनी लाइफ में आने से, लेकिन हम इसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हम इन सब का सामना कर सकें। तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो जो कमज़ोर घर होते हैं या डोर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो चलो हम एक मज़बूत घर बनाएं, उसकी नींव जो है वो मज़बूत रखें। और पोएट ये भी कहते हैं कि हम डोर्स जो बनाएं, जो दरवाज़े बनाएं, वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, और जितनी भी बॉडीज़ हैं उनको प्रैक्टिस कराएं कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और अपने दिलों को हम मज़बूत करें। तो इस तरह से
पोएट ने बहुत ही इनडायरेक्ट वे में हमें एक मैसेज दिया है स्ट्रॉन्ग रहने के बारे में, कि उनका कहना है कि लाइफ में हमारे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स को रोक तो नहीं सकते, बट हम इनका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हमारी लाइफ में जितनी भी वर्स से वर्स सिचुएशन आ जाए, बुरे से बुरा वक्त आ जाए, फिर भी हम इनका सामना कर सकें और इस पर ओवरकम कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें अच्छे से। हमें अपने दिलों को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। बॉडी हेयर मीन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, हमें गिव अप नहीं करना है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। और आगे फर्दर ये कहते हैं पोएट कि अपने आप को मजबूत करो, अपने घरों को मजबूत बनाओ, डोर्स को मजबूत बनाओ, दिलों को स्टेडफास्ट करो। ये करने पर आप देखोगे कि आपने क्या किया है, आपको ये फील होगा कि आपने हवा से दोस्ती कर ली। यानी कि लाइफ में अगर जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, अगर हमने अपने आप को मजबूत रखा है और अगर हम उससे स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद जब सर्वाइव कर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम डिफ़िकल्टीज़ हमारे लिए एक बस फ्रेंड की तरह रह जाती है, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। जब हम उससे दोस्ती कर लेते हैं तो इसका कोई भी बैड इफ़ेक्ट या नेगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर नहीं आ पाती है, हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती है। हम पूरे टाइम पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को लीड कर पाते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। वो यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो वो जो छोटी मोटी जो आग होती है वो तो बुझ जाती है उस हवा के झोंके से, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग फायर है और अगर उस वक्त हवा चलती है तो जब स्ट्रॉन्ग जो फायर है, यानी कि जो आग है, मजबूत आग है, वो और भी ज़्यादा दहकती है, रोर करती है और वो और भी ज़्यादा ग्रो करती है, फ्लोरिश करती है। तो इसी तरह से हम इसको अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में देखें तो अगर हमारी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो जो लोग वीक होते हैं वो तो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो लोग गिव अप कर जाते हैं उनके लिए फिर कुछ भी नहीं बचता। लेकिन अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें और जब ये डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास आए, हम इनसे दोस्ती कर लें, तो क्या होगा, हमारे अंदर की जो एक न्यू पर्सनालिटी है वो उभर करके सामने आती है और हमारा जो डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि द साउंड ऑफ म्यूज़िक में एवेलिन की स्टोरी आपने पढ़ी, वो रियल लाइफ स्टोरी है। तो उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टीज़, अपनी डिसएबिलिटीज़ पर ओवरकम किया और किसी भी चैलेंज के सामने हार नहीं मानी और फिर वो सक्सेसफुल हो पाई। उनकी जो पर्सनालिटी है और भी ज़्यादा ग्रो कर पाई। करेक्ट। तो इसी तरह से ये जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा शाइन कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं और हम खुद में अपने आप में एक डेवलपमेंट फील करते हैं, अपना एक नया जो वर्जन होता है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और फिर हमें ये अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन होता है कि अच्छा हुआ कि हमारे साथ ये डिफ़िकल्टीज़ आई और जिस वजह से मेरे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है मुझे ये पता चल पाया। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ से गुज़र चुके होते हैं और उन्हें ये फिर एहसास होता है कि अगर मेरे साथ ये हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं आज इतनी स्ट्रांग नहीं होती और शायद मैं इतनी सक्सेसफुल भी नहीं होती या नहीं होता। तो यहाँ पे भी पोएट का यही कहना है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, प्रॉब्लम से हमें अपने फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनको हंसते हुए हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हमारे साथ जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है वो बहुत ही अच्छे के लिए हुआ हमारे साथ और जिस वजह से जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं वो उभर गई और हमें एक सक्सेसफुल इंसान बना दिया। ओके, सो आई होप you have understood each and everything related to this poem. I'll see you in next class. Till then, take care. Goodbye.